हेलो एंड वेलकम एकेडमी डीसीएन चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 3 ऑफ द सिविक्स बुक ऑफ क्लास 6th, दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट। सो दिस इज द थर्ड series in the caption the foundation building for civil services Indian polity, in which we are going to study about chapter 3 of class 6th civics book. So this topic will give you a bird's eye view regarding the works of the government. So as you know friends, in our lives, government has a greater role to play. Now everything government is the primary agency which is doing many of our works. So the role of government in our lives is very essential and important. But what is government and what are the types of government? Let us discuss in this chapter. Now, before delving into the chapter, you are seeing some of the paper cutting. Some of the writings are there, the headlines are there. Government sought to protect the rights of unorganized workers. Detailed plan to tackle food soon, says government. Government fixes price of onion, says no shortage in market. Supreme Court can have 5 more judges, government told. Government for revamping coal and power sector. Over 15,000 villages declared scarcity hit by government. So now in this box, in the newspaper captions, you have seen some of the works of the government. First, we have to point it out what are the role of government, what are the duties of government. One is price control, second is market control, third appointment of judges, it is the duty, and managing natural resources. These are some of the activities of the government. Government is doing many activities. So you have seen roads, schools, and price control, supply of electricity. Government is taking many actions in socio-economic political sphere. Several government programs, especially flagship programs, are there for the poverty alleviation. So for a civil servant, it is a prime necessity to know the ambit of the government's work and its course of action and sphere of authority. So, for a layman's view, as you know, friends, that the government is doing everything. If you ask a layman that what is the duty of the government or what are the duties of the government, the answer would be what are not the duties of the government. In a welfare state, all the activities from childbirth up to the cremation of a man, everything is done by the government. बच्चा जन्म होने से पहले से लेकर आदमी जब शमशान जाता है तब तक गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट का जो प्रमुख कार्य पहले था वो था राष्ट्र का जो अखंडता और राष्ट्र का सुरक्षा और राष्ट्र में खुशहाली शांति बहाल कर, टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट as well as maintaining order and discipline in the country. इसके साथ साथ धीरे धीरे गवर्नमेंट का जो काम है वो बढ़ता गया, जैसा कि नागरिकों का स्वास्थ्य का सुरक्षा करना, प्राकृतिक आपदाओं से बचाना, ये सब सरकार का काम के अंतर्गत आ गया। अब राष्ट्र कभी कभी पुलिस स्टेट के भांति कार्य करता है, मतलब नागरिकों का जो सुरक्षा का भार लेता है, दोषी को दंड देता है, तो कभी नागरिक का हित के लिए कार्य करता है। तो ये जो कोर्ट स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा पार्लियामेंट है, ये पूरा सब गवर्नमेंट के वार्क के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट जो कार्य करता है, ये कार्य को गवर्नमेंट कैसा करता है, हाउ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट इज मैनेज्ड, ना द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर मैनेज्ड बाय डिफरेंट एजेंसीज. There are different specialized agencies, departments created by the government to do the work. So ये काम करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठन का होना जरूरी है, जैसा कि गवर्नमेंट करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का चित्र है। ये सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू प्रोवाइड जस्टिस, भारत पेट्रोलियम इज देयर टू प्रोवाइड petroleum, and Indian Railway is there for the transportation system. So different agencies of the government are working different works, so that all the activities of the government are just coordinated and all function in a streamlined manner. So you see
there is a question that can you list three things that the government does which have not been mentioned? That means here poverty alleviation, provision of works for the people, old age and sickness assistance. These are the help provided by the government. These are, we cannot say that help, it is the duty of the government. In modern parlance we can say that these are the duties of the government. So government is doing also another thing. What? Now government have made some rules and regulations which are applied over the specified territory of the government, the people who are living within the periphery of a state where government's rule is applied. Government is controlling the resources, protect the territory of the country, and government is doing everything what a civilized nation wanted to have. So the government is doing all these things not in an exclusive manner, but by the method of decentralization in nowadays. What is decentralization? Means the work of one part of the government is just distributed to different levels for the efficient carrying out of these works. So now our point of study is the levels of गवर्नमेंट. सरकार का जो स्तर है इसके बारे में हम चर्चा करें. तो गवर्नमेंट ये जो काम करता है ये विभिन्न क्षेत्र में करता है, जैसा कि स्थानीय क्षेत्र जो है, राज्य क्षेत्र और उसके बाद राष्ट्रीय क्षेत्र. इन क्षेत्रों में गवर्नमेंट जो है अपना काम को बांट के करता है ताकि काम सब जो है सही ढंग से हो पाए और इफिशियंट भी हो पाए, सब काम इफिशियंटली हो पाए. जैसा कि आप जानते हैं हमारा स्थानीय क्षेत्र में जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, राज्य में स्टेट गवर्नमेंट है और केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट है. अब ये जो तीन लेवल पर गवर्नमेंट कार्य करता है, ये काम को संयोजित अगर किया जाता है तो नागरिक का जो जरूरतें हैं वो पूरा होता है और गवर्नमेंट भी इफिशियंटली काम कर पाता है. तो अब आप देख रहे हैं ये भारत है. ये भारत में अब कुल मिलाकर 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित क्षेत्र है. तो इन क्षेत्रों में जो काम होता है, राज्य को कुछ जिलाओं में और हर जिलाओं को कुछ ब्लॉक्स में विभक्त किया गया है और हर ब्लॉक कुछ पंचायत को लेकर बना हुआ है. तो ये बिल्कुल जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन डिफरेंट स्तर पर भारत में हो रहा है, कार्य सही ढंग से हो पा रहा है. सरकार का कार्य को संयोजित और सुनिश्चित किया जा सकता है. अब कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन जानना हमारे लिए थोड़ा हमारा अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विथ रूसिया. ये कौन सी स्तर का कार्य है? ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य है. द डिसीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 8 फॉर ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स, ये स्टेट गवर्नमेंट का पेरिफेरी का काम है. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन जम्मू एंड भुवनेश्वर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है. द डिसीजन टू लोकेट ए कॉमन वेल इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है. कुआं नलकुआं वगैरह सब. डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट ए बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना, ये स्टेट गवर्नमेंट का कार्य है. द डिसीजन ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स इज द ड्यूटी ऑफ the state government. Introduction of a new 1000 rupee note is the duty of the central government. So central government intends to do it. So गवर्नमेंट का ये जो स्तर है, ये जो लेवल है, ये होने से काम को ठीक तरह कोऑर्डिनेट किया जा सकता है. नाउ कम्स लॉ एंड गवर्नमेंट. व्हाट इज लॉ? ए क्वेश्चन कम्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ? लॉ is the command of the sovereign. Law means the common sense added with the beneficial effects for all the people for an orderly society. इसको अगर मैं सरल कर दूं कि कानून बोलता है कुछ करने के लिए, सम डूज एंड सम डू नॉट्स, कुछ करने योग्य है और कुछ नहीं करना है. अगर कुछ करना है तो करने के लिए जो करते हैं वो है कॉन्फर्मिटी, जो करते हैं उनको बोला जाता है कॉन्फर्मिटी और जो नहीं करते हैं उनको बोला जाता है डेफिया. तो सरकार एक राष्ट्र में कानून बनाता है, ये कानून को सब लोग मानना
जरूरी है। अगर कोई कानून नहीं मानता है तो उसको कानूनन दंड दिया जा सकता है। ही ought to get punishment for his deviant behavior। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस जरूरी है। ये लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप गाड़ी चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लाइसेंस आपके पास नहीं, आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, दैट मीन्स यू आर शोइंग डेविएंट बिहेवियर, यू आर नॉट कन्फर्मिंग, यू डू नॉट डू व्हाट एवर यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। अगर आपको जो करना है वो आप नहीं करते हैं, मतलब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, अतः आप दंड के योग्य है। तो दंड कौन देगा? दंड गवर्नमेंट देगा। तो अब प्रश्न उठता है, तो गवर्नमेंट दंड किस प्रकार दे? गवर्नमेंट किस प्रकार दंड दे सकता है? तो गवर्नमेंट दंड देगा। ये गवर्नमेंट का पावर कहां से आता है? इट इज द टोटल पावर ऑफ द पीपल, इट इज द टोटल पावर ऑफ ऑल द पीपल। सब लोगों का जो सम्मिलित शक्ति है, ये सम्मिलित शक्ति से जो कानून बनाया गया है, इट हैज गॉट दी लेजिटिमेसी। ये कानून एक जायज कानून बनता है लोगों की मदद से, मतलब लोगों की सहमति से। लेकिन कुछ समय क्या होता है कि कुछ ऐसे कानून बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अनपॉपुलर लॉज, जन अप्रिय कानून। इस क्षेत्र में क्या होगा? अगर अनपॉपुलर लॉ बनेगा, अगर अनपॉपुलर लॉ बनेगा तो लोग उसको प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट लोकतंत्रात्मक गवर्नमेंट हो या राजतंत्रात्मक गवर्नमेंट हो, लोग इसे विरोध करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ब्रिटिश सरकार के जमाने में आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आप लोग जानते हैं रावलाट एक्ट, ये सब एक्ट को लोग विरोध किया था। अगर कोई कानून के अंतर्गत कुछ लोग बाधित होते हैं तो वह लोग वह कानून के खिलाफ जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे? लोकतंत्र में ये भी व्यवस्था है, अगर कोई कानून के ऊपर आपका स्वार्थ का हानि होता है, कोई कानून के द्वारा आपका स्वार्थ का हनन होता है, आप अपना जायज अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इस स्थिति में यू कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ, यू कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ बाय व्हिच all your grievances could be heard and justice would be given to you, your grievances would be redressed through the judicial system। अब सरकार कितने प्रकार के हैं उसी पर चर्चा करते हैं। Who gives the government this power to make decisions and to enforce laws? ये जो मौलिक प्रश्न है, ये मौलिक प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अब हम एक लोकतंत्रात्मक सरकार में रह रहे हैं। अब लोगों से सरकार को पावर दिया गया है। सब लोग बैठकर जो लोकतंत्र बनाए हैं, लोगों का सम्मिलित शक्ति सरकार को प्राप्त है। लोगों का शक्ति का इस्तेमाल करके सरकार कानून बनाता है, कानून को लागू करता है और राष्ट्र का सुरक्षा करता है, नागरिक का हित का ध्यान देता है। ये सब कार्य लोगों की सम्मिलित या सामूहिक क्षमता से आता है। तो सरकार जो लोकतंत्र में बनता है वो लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र में सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है तो वो लोगों की आशा के अनुसार कार्य करता है और सरकार जानता है अगर वो लोगों की आशानुरूप कार्य करेगा तो लोग उसे नकार सकते हैं, लोग उसे उखाड़ फेंक सकते हैं अगले निर्वाचन में। लेकिन एक दूसरे प्रकार का सरकार है दोस्तों, जिस सरकार का नाम है मोनार्की। मोनार्की का मतलब है राजतंत्र, रूल ऑफ ए किंग। ये राजा के शासन में आप जानते हैं यहाँ लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। लोकतंत्र की प्रक्रिया को यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है, बल्कि राजा जो है वो अपना कार्य जो करता है इसके लिए वो लोगों के पास उत्तरदायी नहीं है। लोग उसे सत्ता से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसका जो अधिकार है बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ, जन्म के आधार पर वो अपना
सत्ता प्राप्त करता है, जो कि वो राजा का बेटा राजा, जिसका बाप चढ़े घोड़ा, उसका बेटा थोड़ा थोड़ा नहीं ज्यादा ज्यादा। तो कहने का मतलब है राजा का बेटा राजा होगा। राजतंत्र में राजा लोगों की सलाह से नहीं बल्कि उनका कुछ सलाहकार हैं जो उन्हें सलाह देते हैं, उनकी सलाह के अनुसार वो राज्य चलाता है। वो सलाहकारों के सलाह को सुन सकता है या उन्हें नकार भी सकता है। इट इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द मोनार्क आइदर टू लिसन टू हिज एडवाइजर्स और काउंसलर्स और टू वर्क विथ हिज ओन स्वीट विल। अपने मनमानी ढंग से वो भी राज कर सकता है। अब ये लोकतंत्रात्मक सरकार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं इंडिया एक लोकतंत्र है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी है दोस्तों, ये अत्यंत आसान से हमको नहीं मिला। इसके लिए एक लंबे अरसे तक संघर्ष करना पड़ा। इसी के बाद हमारा देश 1947 अगस्त 15 में स्वतंत्रता हासिल की। स्वतंत्रता के बाद हमारा राष्ट्र में संविधान बनाया गया, आप लोगों को मालूम है, जिसके बारे में हम उसका अभी चर्चा कर रहे हैं, प्रारंभिक पायदान। और उसी के बाद हमारा भारत में लोकतंत्रात्मक शासन को बहाल किया गया और भारत एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। ये जो लोकतंत्र भारत में है, ये लोकतंत्र का नाम है। इसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन में हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली दे टेक पार्ट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब उनके द्वारा निर्वाचित हुए जो प्रतिनिधियां हैं वो शासनभार संभालते हैं। क्योंकि आज संसार में बड़े बड़े राष्ट्रों की जनसंख्या में काफी बढ़ोतरी हुई, तो बड़े बड़े राष्ट्र के करोड़ करोड़ों की जनसाधारण जो है, करोड़ अरब की जनसाधारण, वो प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्य में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अतः उन्होंने अपना प्रतिनिधियों को चुनाव करके भेजते हैं। जो प्रतिनिधि लोगों की तरफ से लोगों का मैंडेट पाकर, वोट पाकर निर्वाचित होकर सरकार बना के लोगों की तरफ से कुछ समय के लिए, मान लीजिए 5 साल के लिए, लोगों को शासन करते हैं। उसी के बाद फिर निर्वाचन होता है। वही प्रतिनिधियां अगर लोगों के विश्वास का पात्र फिर बनते हैं तो फिर निर्वाचित होते हैं, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र नागरिक को शक्तिशाली बनाता है। द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन इंडिया इज ऑल्सो हैविंग द वोटिंग राइट। दिस पर्सन इज कास्टिंग हिज वोट and getting the indelible ink mark in his finger, in his index finger. So decision for the entire population डेमोक्रेसी में कैसे लिया जाता है ना, सरकार के द्वारा लिया जाता है, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के द्वारा। और इसमें जो वोट प्रक्रिया है उसे कहा जाता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इस फ्रेंचाइज के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र वाले जितने भी भारतीय हैं वो वोट देकर अपना प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ ये किताब में चर्चा किया जाता है कि जब अंग्रेजों का हुकूमत था भारत में, तब तक सब लोगों को अधिकार नहीं था वोट देने के लिए। वोटिंग वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एज वेल एज प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन। प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन वाज द फर्स्ट यार्डस्टिक, देन एजुकेशन। अगर जो लोग सरकार को राजस्व या कर देते थे वही लोग वोट देने में समर्थ होते थे। इसीलिए सब लोगों को वोट देने के लिए अधिकार नहीं था। इसके खिलाफ गांधी जी ने अपना आवाज उठाए। गांधी जी बोले कि ये जो कुछ चुनिंदा लोगों को वोट की अधिकार दिया जाए ये बिल्कुल अनफेयर है। तो महात्मा गांधी ने अपना आवाज उठाई। उन्होंने यंग इंडिया में 1931 में लिखा था, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट, बट ए मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जिसके पास धन है वो वोट देने में समर्थ है, लेकिन विपरीत जो व्यक्ति का चरित्र निर्मल है, जो व्यक्ति अच्छा है लेकिन वो पैसा वाला नहीं है, उसके पास संपत्ति नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, वो
कड़ी मेहनत करके अपना रोजी रोटी कमाता है। ही इज जस्ट अर्निंग हिज ब्रेड विथ द स्वीट ऑफ हिज ब्रो डे एंड नाइट। वह अपना खून पसीना एक करके, परिश्रम करके, मेहनत करके अपना रोजी रोटी कमाता है, उसको वोट अधिकार नहीं देना ये अन्याय है। इट इज ए क्राइम। बट ये क्राइम समाज का नहीं होता है, या जो ऐसा व्यवस्था किया है उसका नहीं होता है, सरकार का। ये गरीब लोगों का क्राइम हो जाता है कि वो गरीब लेकर क्यों जन्म लिया। ऐसा ब्रिटिश इंडिया में होता था, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात उसे नकार दिया गया है। अब हमारा भारत में सब लोगों का यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो सिर्फ ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बात करते करते ये भी याद आ जाता है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आप जानते होंगे कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ उसमें भी जो मेन मतलब जो पुरुष लोग हैं, 25 साल से ज्यादा पुरुष लोग जो कि टैक्स पे करते थे, उन्हें वोट अधिकार दिया गया। और उसमें कहा गया, फ्रेंच डिक्लेरेशन जो हुआ इसमें कहा गया राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, मतलब नागरिक और पुरुषों का अधिकार, उनमें स्त्रियों का अधिकार नहीं था। यूरोप के कुछ मशहूर देश, यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सब देशों में महिलाओं का वोट अधिकार नहीं था। तो महिला अपने आप को संगठित किए और प्रथम महायुद्ध के दौरान उन्होंने शुरुआत किया वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। उनका ये सफरेज मूवमेंट का मूल लक्ष्य था कि महिला पुरुषों का बराबरी करे, इसीलिए उन्होंने आंदोलन किया। ये आंदोलन जो है उसको कहते हैं सफ्रेगेट मूवमेंट, मतलब जो महिलाओं का वोट अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं सफ्रेगेट मूवमेंट के अंतर्गत। क्योंकि आप जानते हैं महिला पुरुष के जैसा समर्थ भी है, लेकिन ये जो स्टेरियोटाइप है, जैसा कि हम चैप्टर 2 में चर्चा कर रहे थे, ये स्टेरियोटाइप उनका डेप्रिवेशन का कारण बना। स्टेरियोटाइप लेड टू देयर डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन मीन्स उनका वोट अधिकार उनको प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उससे वंचित हुए। अतः उनको उनका अधिकार देने की लक्ष्य में जो आंदोलन चला, ये आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि काफी संख्या में महिलाओं ने स्ट्राइक किए। उन्होंने अपने आप को जंजीर में जकड़ के बांध के दर्शाया कि उनको अधिकार अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। फलस्वरूप इन 1920 अमेरिका के महिलाओं को वोट अधिकार दिया गया। राइट टू वोट was given to the American women and यूनाइटेड किंगडम, जिनसे हम हमारा जो संविधान का मूल ढांचा है उन्हें आहरण किए हैं। उन्होंने जाकर 1928 में महिलाओं को वोट अधिकार दिया। उसी के बाद फ्रांस महिलाओं को वोट अधिकार दिया। तो अतः ये स्पष्ट होता है कि हम जो सरकार के कार्य के बारे में अच्छी खासी ज्ञान प्राप्त करें, तो अतः ये स्पष्ट होता है कि हमारा जो सरकार है इसका एक राष्ट्र में क्या भूमिका है और नागरिकों की जिंदगी में उसका क्या भूमिका है, तथा सरकार कितने स्तर में कार्य करता है, सरकार कितने प्रकार का होते हैं, सरकार को कौन चुनते हैं या सरकार अपने आप सत्ता में बसता है। ये सब हमारा चर्चा का विषय था, जिसके बारे में हम चर्चा किए। मुझे आशा है कि ये विषयों को आप भली भांति समझ पाए होंगे और आपके ये जो लर्निंग को रीइंफोर्स करने के लिए कुछ रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन बनाया गया है, आप उन्हें थोड़ा मेरे साथ शेयर कीजिए वो रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन को। इसके बाद माइंड मैप दिया गया है। आपको अनुरोध है कि पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और ये चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं नया नया वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, it is chapter 2, what is government. Now we are going to discuss about the mind map of this chapter. So first of all, what are the functions of the government? The first function of the government is to maintain law and order, and it is the protection of the territory of the country and defending the country and acquiring territories. But nowadays it is not held, because in this world order no country
is wanting to expand its territory, unlike the condition prevalent before 1945. So now every country wants to defend and protect its boundary and territory. Next is maintaining public order and morality and to punish the wrongdoer. Then another function is the government is doing so through laws. The laws may be in the means of a constitution or maybe some legal provisions to maintain public order and morality. Law means some common codes of conduct which is desiring to do something and not to do something. Some do's and do nots are there. And the law is called as the command of the sovereign. And there is a sanction, means penal sanction for the violation of laws. So law is supreme over everybody. It is called as a rule of law, कानून का शासन. Next comes levels of government in a democracy. So these are the central government, state government, and local government. It is the vertical division of power. It is the vertical division of power in a democracy. So this type of democratic decentralization is better for the governance of the. Then another function of the government is the welfare activity. The welfare activities means the betterment of the citizens who are the residents of a country. First of all, in the welfare activity, education is there, then health care is there, and education, primary education, secondary education, then technical education, and different education systems are prevalent in a country for the betterment of the citizens. Then health care, food security program, poverty alleviation programs, and old age and sickness assistance programs. These are provided by the democratic country nowadays because the country is no longer a police state, but now it is a welfare state doing all round development of the citizens who are the residents of the country, because the citizens themselves choose the government. So government has the primary role now for the welfare activities. Now then comes the rights and duties of the citizens in a democracy. In a democracy, the rights of citizen can be identified by universal adult franchise, that is called as UAF, means सार्वभौम वयस्क मताधिकार. ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार सब राष्ट्रों में समरूप नहीं दिया गया. तो सफ्रेगेट मूवमेंट महिलाओं के वोट अधिकार का आंदोलन था और ये आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अमेरिका को 1920s में मिला, यूनाइटेड किंगडम को 1928 में मिला, फ्रांस को 1946 में मिला. तो इसी प्रकार ये जो आंदोलन के द्वारा सब लोगों को, मतलब समाज में नारी और पुरुष दोनों को वोट अधिकार मिला. लेकिन भारत में ये 1950 जनवरी 26 में सब लोगों को, पुरुष महिला, मेन एंड वुमेन को अप्रोच द एज ऑफ 21 ईयर्स उनको मिल गया. अब हाल ही में ये 18 साल है. और जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम देखते हैं, गवर्नमेंट का कार्य के बारे में हम चर्चा की. अब जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें मोनार्की है, राजतंत्र, डिक्टेटरशिप, तानाशाही शासन, ऑटोक्रेसी भी तानाशाही शासन, और अरिस्टोक्रेसी मतलब अभिजात तंत्र. अभिजात तंत्र में कुछ लोग, गिने चुने लोग शासन करते हैं. और डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज रूल ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल. So now proceed to the MCQs of what is government. So now the recapitulatory questions: what do governments do for their people? Government build the roads and schools, supply the electricity, take action on social issues. The right answer is all of these. Next question comes: which agency of the government does the job of protecting the boundaries of the country and maintain peaceful relations with the countries? So peaceful relationship with the countries is done by Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Defense protects the boundary of the country. So the answer is B and C. Third question is: what is an important part of the government? Important part of the government is parliament. Parliament is the law making agency. It is the law making agency
of the government. So it is an important part, and the courts are there to review the law and to punish the criminal suit or wrongdoer. So parliament is the important part of the government because it makes law. After the making of the law, it is just implemented by the court system. So next question is, at which level does a government work? Government works at local level, national level, or state level. Now all of these, in all these levels, the government is working. Which of the following is the capital of India? You all know it is New Delhi. On which level does Indian government take decisions to maintain peaceful relations with USSR? It is the central level work. It is not the state level or local level. The central government is empowered to keep better relationship with the countries. What does the government make for everyone to follow? Government makes law. गवर्नमेंट कानून बनाता है जिसके द्वारा समाज में शांति और खुशहाली बरकरार रह सकता है. एनी पर्सन हु इज कॉट ड्राइविंग विदाउट ए लाइसेंस कैन बी jailed or fined. So both of these. Next question is, which type of government is chosen by the people? It is the democratic government chosen by the people. What is a monarchical government? A monarchical government is the rule by the king or the queen. So in monarchical government, people do not choose their representative. So इन मोनार्की पीढ़ी दर पीढ़ी शासक शासन करता है, राजा का बेटा राजा होता है. इन व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू दी किंग्स एंड क्वींस नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिसीजन दे टेक? इन ए मोनार्की दे डू नॉट just explain their actions because they can act according to their own sweet will because they are supreme rulers. To whom did the government not allow to participate in election in olden times? The government did not allow the poor persons because the persons who were giving taxes were only allowed to participate in the election. It was the property qualification. According to the property qualifications, voting right was given. Even after French Revolution also, voting right was not given to the women and the non-tax paying classes. So now the next question is, when was only a small minority allowed to vote? Before independence in India, only a small minority was allowed to vote because it was a limited vote after the Morley Minto reforms of 1909, as you know. So from 1909 onwards, Indians got some of their powers to vote, but not all Indians. Only a microscopic minority who were the rich people and influential people, they got the right to vote. So it was limited vote. When was publishing of a journal Young India started? It was 1931 by Mohandas Karamchand Gandhi, the father of the nation, was started. So friends, I request you to watch out this video from beginning to end, and I request also to you to subscribe to my channel Academia ECN so that I could be inspired to produce more and more videos. So friends, thank you very much. I wish that you should be familiar with my video and see it again and again for remembrance of the topic. Thank you very much.